وہ عائشہ اور مہکار حیدر کے ساتھ اس وقت جیولری شاپ میں موجود تھیں۔ مہکار اور عائشہ دونوں اپنے لیے جیولری پسند کر رہی تھیں اور تقویٰ ایک سائڈ پر چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے لیے کی گئی شاپنگ بیگز تھے جسے حیدر نے کافی کہا تھا کہ وہ اٹھا لے گا، پر تقویٰ کو پسند نہیں آیا اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا جس سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہ ہو۔ اس نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ وہ تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس پہلے ہی کچھ اچھے سوٹ اور خوبصورت ٹاپس پڑے ہوئے تھے، پر اسے آنا پڑا، ایک تو عاشق کی ضد، اوپر سے دانیال کے کہنے پر۔ آج رات حیدر شاہ کے بنے نئے گھر میں پارٹی تھی حامد صاحب کی آمد کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حیدر کی نظروں میں ایسا تھا جیسے وہ خاص طور پر اسے انوائٹ کر رہا ہو۔ وہ جیسے خود کو ایک گھٹن میں محسوس کر رہی تھی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو، پر اسے جانے کے لیے راضی کیا گیا۔ ایک تو عاشی، دوسرے ہارون بھائی نے یہ کہہ کر کہ یہاں پر کوئی نہیں ہوگا اور تمہیں ہم اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات دانیال سے بھی کی جس نے اجازت دے دی کیونکہ اسے اپنی بہن پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ دونوں بھائی بہن ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر اسے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ اس کی بہن کیسے زندگی کے مشکل دن گزار رہی ہے تو وہ لات مار کر آ جاتا اس نوکری پر۔ ظاہر ہے وہ کس کے لیے کما رہا تھا، اپنی بہن کے لیے ہی، اور اگر وہی خوش نہ ہو تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ، پر وہ انجان تھا۔ تقویٰ بیٹھی جیولری دیکھ رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے وجود کے جاندار کہے پر اس نے سر گھمایا۔ سامنے ہی سائم لیلا کی کمر میں بازو ڈال کر ہنستا اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں ہی مسکرا رہے تھے اور خوش بھی لگ رہے تھے۔ تقویٰ ناگواریت سے منہ پھیر لیا۔ ابھی وہ یونی میں عاشق کی محبت میں آہیں بھر رہا تھا اور اب یہاں لیلا کے۔ اس نے دعا کی کہ کاش عائشہ دیکھ لے تو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے، پر ایسا نہ ہوا کیونکہ عائشہ بری طرح مہکار کے ساتھ جیولری سلیکٹ کرنے میں محو تھی کہ اس کے آس پاس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ البتہ سائم کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کا ہاتھ خود بخود لیلا کی کمر سے دور ہو گیا اور دونوں کے بیچ کچھ فاصلہ قائم کر دیا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ لیلا اپنے اور اس کے بیچ فاصلے پر بولی۔ کچھ نہیں، آؤ۔ اس نے انکار کیا، پر جب لیلا کی نظر عائشہ پر پڑی تو بل کھا کر رہ گئی۔ ڈونٹ ڈو اٹ سائم، وہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ سائم نے غصے سے اسے دیکھا اور گرا کر نیچی آواز میں بولا، اپنی اوقات میں رہو لیلا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تو ناچار اسے بھی پاؤں پٹک کر جانا پڑا اس کے پیچھے۔ وہ بھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی اسے۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کرے گی تو صرف سائم سے، ورنہ اسے کسی کا نہیں ہونے دے گی۔ سائم چلتا ایک مسکراتی نظر تقویٰ پر ڈال کر عائشہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لیلا تقویٰ پر ایک قہر آلود نظر ڈالتی سائم کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ تقویٰ ہی تو تھی، نہ وہ اتنی پارسائی دکھاتی، نہ ہی سائم اپنے دوستوں سے شرط کے طور پر اس کی دوست کے پیچھے آتا، ورنہ تو یہ مڈل کلاس لڑکیاں اس کے تصور میں نہیں ہوتی تھیں۔ عائشہ نے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پر گردن موڑی تو سائم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابل آئی۔ اسی پل سائم نے اسے دیکھا اور ایک آنکھ میچی۔ عائشہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ہائے مس عائشہ، کیسی ہیں؟ وہ تمیز اپنے لب و لہجے میں رکھ کر مخاطب ہوا۔ اس کے مخاطب کرنے پر عائشہ نے پھر اسے دیکھا اور مہکار نے بھی گردن موڑی۔ ایک پل کو تو مہکار کی آنکھیں اس پر جم سی گئیں اور اپنی آنکھوں میں شدید حیرت لیے عائشہ کو دیکھا۔ یہ سائم زیدی ہے، اس نے سرگوشی میں جھک کر پوچھا۔ عائشہ نے سر ہلا کر تصدیق کی اور اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکا کر پوچھا کہ کیا کہتی ہو؟ دیکھ رہی ہو اتنا ہینڈسم لڑکا میرے پیچھے ہے۔ مہکار نے نظروں سے ہی اشارہ کیا کہ کیا بات ہے بھائی، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سائم کو کوف سی ہو گئی پر جبرن مسکرا کر بولا، الحمدللہ ٹھیک۔ شاپنگ کرنے آئیں، کوئی خاص وجہ؟ اسے سامنے خوبصورت نیکلس کو تکتے پا کر بولا جو اس کی اوقات سے کافی مہنگا تھا۔ جی، میرے انکل پیرس سے آ رہے ہیں نا، تو آج رات پارٹی ہے، اسی لیے خاص شاپنگ، وہ اترا کر بولی تو مہکار نے مسکراہٹ روکی۔ البتہ تقویٰ کافی فاصلے پر تھی ان کی گفتگو سے۔ لیلا بھی عائشہ کی حقیقت سے واقف تھی، اس کے دوست نے ہی تو اس کا سارا بیک گراؤنڈ سامنے رکھا تھا جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جل کر دانت پیسے۔ جھوٹی عورت، وہ بڑبڑائی تو سائم نے اس کے ہاتھ پر گرفت کی کہ آہ کرتی رہ گئی۔ پیچھے تقویٰ آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی سائم کی حرکت کو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کی نوجوان نسل کو، کیوں ایسے وحشی کو بڑھاوا دے رہی ہیں؟ وہ دکھ سے سوچتی اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ سائم نے ایک نظر عائشہ پر ڈال کر سامنے موجود نیکلس لانے کو کہا۔ سیلر بوائے نے سر ہلا کر اسے سائم کے سامنے رکھا۔ سائم زیدی کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، وہ اکثر ہی ان کی شاپ پر نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ پایا جاتا تھا اور ان کی پسند سے جیولری دلواتا۔ کوئی بڑا ہاتھ مارتی تو کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لیتی۔ سائم خاموش کھڑا رہتا، کسی سے کچھ نہ کہتا اور پھر آخر میں پیمنٹ کرتے چلا جاتا۔ لیلا نے آنکھیں کراس ڈائمنڈ کے نیکلس کو دیکھا اور اسے لگا سائم نے اس کے لیے لیا ہے، اور سائم نے جب عائشہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کا جہاں دیکھا تو اسے پیک کروا دیا۔ کچھ دیر میں اس لڑکے نے چھوٹا سا شاپنگ بیگ اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ سائم کا دل کیا اسے منہ پر مارے، پر وہیں ضبط اس نے اٹھا کے
आहिस्ता से वो बैग नीचे आयशा की उंगलियों में फंसा दिया और उसके हाथ पर नरम सी ग्रिप्स करके छोड़ दी। आयशा की आंखें फट गईं जब वही बैग अपने हाथ में देखा। महकार सब कुछ देखते हुए भी अनजान खड़ी थी। साइम एक मुस्कुराती नज़र शौक खड़ी आयशा पर डालकर लैला और उस नेकलेस की पेमेंट करता वहां से मुड़ा तो उसकी नज़र चादर में खड़ी उस सांवली रंगत वाली तकवा पर गई जो खूंखार नज़रों से उसे ही देख रही थी। वो शायद उसकी हरकत देख चुकी थी और साइम को बहुत मज़ा आया जब भी वो लैला को आगे जाने का कहता खुद उसकी जानिब कदम उठाए। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी शॉपिंग करवा सकता हूँ, पर बदले में, उसने देखते मकरू अंदाज में कहा। तकवा का दिल काम कर रह गया उसकी बात पर। तुम, वो कहती अपनी उंगली उसके मुंह पर मारने ही वाली थी जब साइम ने हाथ हवा में ही थाम लिया। डोंट बी सिली, उसके हाथ को झटकते वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने अगर तुम चाहो भी कहा है, वो कहकर आगे बढ़ गया। हैदर जो अंदर दाखिल हो रहा था तकवा के करीब से उसी यूनी वाले लड़के को गुजरता देखकर तेज कदमों में अंदर दाखिल हुआ। साइम ने उस खूंखार नजरों से घूरते लड़के को देखकर आईब्रो चुकाया और शॉप से बाहर निकल गया। क्या हुआ तकवा, क्या कह रहा था? तुम ठीक हो? हैदर को लगा वो लड़का उसे परेशान करता है। अगर ये सच हुआ तो वो उसे मारने से भी गुरेज न करता। हैदर की आवाज पर तकवा ने उसे देखा। कुछ नहीं है, वो गुस्से से आयशा पर नजर डालती कहकर वहां गई तो महकार और आयशा हक्का बक्का रह गईं। इस तकवा बेगम को क्या हुआ? महकार ने तंजिया आयशा से पूछा। मैं क्या जानूं, वो कंधे उचकाकर बोली तो महकार ने नखुआ से मुंह फेरा। बहाने हैं मैडम के नजरों में नुमाया होने के लिए, वो कहकर आगे बढ़ गई तो पीछे आयशा भी साथ हुई। हैदर ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची। पर्पल कलर के घेरदार फ्राक, वाइट चूड़ीदार पजामे में गीले बालों को तौलिए में लपेटती वो मिरर के सामने आई। आईने के सामने आकर उसने अपने बाल तौलिए से निकाल लिए जो गीले होने की वजह से लहरा कर उसकी पुष्ट पर गिरे। भले ही वो आम शक्लो सूरत की थी पर उसके शहद रंग बाल कमर तक फैले हुए थे। उसे याद नहीं था कि इस घर में किसी ने भी उसके बाल देखे होंगे क्योंकि वो हमा वक्त बालों को जुड़े में कैद करके स्कार्फ पहने रहती थी। ये सब फुप्पो की करम नवाजी थी जो उसके रोज रात को बालों में तेल से मसाज करती थी और कुछ देखभाल तकवा की भी थी जो उसके बाल इंतहाई खूबसूरत थे। वो मुस्कुराती बालों में ब्रश करने लगी और उन्हें फिर जुड़े में कैद करके स्कार्फ पहन लिया। टॉप्स पहनने का फायदा एवं ही बोझ कानों पर। वो मुंह बनाकर उन्हें वहीं छोड़कर वापस सैंडल्स निकालकर पहनने लगी। हो गई तैयार? टुक टुक करती आयशा तकवा के रूम में दाखिल हुई। ये क्या, इतनी देर हो गई और तुम अभी वैसी की वैसी बैठी हो? बालों को झटकते आयशा गुस्से से बोली। नहीं, मैं तैयार हूँ, चलें? वो अपना क्लच उठाकर मुस्कुराती बोली। क्या? आयशा चीखी। ये तुम इसे तैयारी कहती हो? मैं तो कहती हूँ प्लीज यार अभी चेंज करो वरना बेइज्जती ना करवा दो, कोई मिडिल क्लास ही लड़की लग रही हो। वो फुल तैयार ब्लैक खूबसूरत सी मैक्सी में मलबूस शोल्डर कट बालों के साथ इंतहाई हसीन लग रही थी कि तकवा ने बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। मुझे खुशी होगी अगर मेरी पहचान मेरे लिबास से जाहिर हो ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो और मुझे दिली सुकून मिले कि मेरा कोई दूसरा रूप नहीं, मैं सिर्फ एक हूँ जिसका नाम तकवा है। वो मुस्कुरा कर उसके पास आई और मोहब्बत से देखती बोली। आयशा अंदर जैसे कुछ हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है तकवा? तुम हमेशा किसी न किसी बात पर मुझ पर तंज करती हो, वो बिगड़ कर बोली। तकवा की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। मेरी जान, मैं क्यों तुम पर तंज करूंगी? मैंने सिर्फ एक काम सी बात की है अपने मुतल्लिक। अगर इसमें कोई तुम्हें तंज लग रहा है तो मेहरबानी करके मेरे तंज को नहीं, इस बात को सोचो कि वो तुम्हें तंज क्यों लगा। वो उसके खूबसूरत चेहरे को देखती बोली। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उसने हैवी मेकअप किया हुआ था जिसकी अलिफ बे से भी तकवा वाकिफ ना थी। तुम हमेशा तंज करके मोहब्बत की चाशनी में बात घुमा देती हो। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तकवा तुम काली हो या ओल्ड वुमेन लगी हो? कुछ भी कहा तुम्हें? वो उसके हाथ झटकती आईने के सामने आई और हाथ में मौजूद बैग टेबल पर रखकर उसे डायमंड नेकलेस निकालकर पहनने लगी। ये किसका है आशी? तकवा जानती थी ये वही नेकलेस है जो उसे साइम ने दिया था, जिसे वो सीधा अपने घर ले गई थी और फिर वापस आई ही नहीं। तकवा उससे बात करना चाहती थी, उसे मना करना चाहती थी पर वो आई ही नहीं और ना ही उसकी कॉल उठाई। उसे तो हैरत थी महकार भाभी पर जिसने उसे मना तक नहीं किया बल्कि खामोशी से देखती रही। तकवा को दुख तो बहुत हुआ पर वो चुपचाप जहर पी गई। महकार भाभी ने गिफ्ट किया है, अपनी सुराहीदार गर्दन में पहनते उसने जवाब दिया। तकवा का चेहरा बुझ गया। आशी मुझसे झूठ मत बोलो। वो आगे बढ़कर उसके सामने आई। एक पल को आयशा ने उसके चेहरे को देखा और गले पर बाजू रखे उसके हाथ को झटका। प्रॉब्लम क्या है तकवा? क्यों मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने लगी हो? मतलब हद ही हो गई। जहाँ देखो ये ना करो, वो ना करो, ये गलत है, ये ठीक है। दुपट्टा सर पर लो, नजरें नीची रखो। मतलब तुमने तो मेरी माँ के भी रिकॉर्ड तोड़ लिए। तुमसे दोस्ती करके मुझे लगता था मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, पर अब ऐसा लगता है जैसे मैंने अजाब अपने गले में डाल लिया है। मैं लास्ट बार तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अब अगर तुमने मुझ पर रोक टोक की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन मैं कौन। अभी माँ जिंदा है मेरी। तुम अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करो ना, जासूस बनकर हर किसी पर नजरें टकाए ना रखो। तकवा को पता ना लगा कब उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे और वो बगैर उसकी परवाह किए अपनी बोले जा रही थी। ये कहना ठीक था कि चीखी जा रही थी उसके सर पर।
हद होती है हर चीज़ की। खुद को कोई देखता नहीं, दूसरों पर बस मौका चाहिए। अब की बार बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। मुझे पता है क्या गुनाह है क्या सवाब। तुम्हें मेरी मदर बनने की ज़रूरत नहीं। वो कहकर बगैर रुके रूम का दरवाज़ा धाड़ से खोलते वहाँ से निकलती चली गई। ये तो मेरी आशी नहीं थी। वो चेयर को पकड़कर बैठती फूट फूट कर रोने लगी। वो तो बहुत प्यारी थी, मासूम। तो फिर ये कौन थी? या अल्लाह, मेरी आशी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह, तो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मेरे मालिक, मेरी प्यारी सी दोस्त को गलत राहों पर चलने से बचा। वो हाथ बुलंद करते दुआ करने लगी। क्या हुआ? शोला फिशां क्यों बनी हुई हो? रेड साड़ी में मलबूस महकार नफीस सी ज्वेलरी पहने मेकअप में बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसे बुलाने जा ही रही थी कि आशी उसे नीचे आते दिखाई दी, पर उसकी सुर्ख रंगत देखकर वो पूछे बिना ना रह सकी। मत पूछें भाभी, सारा मूड गारत कर दिया इस तकवा ने। वो सोफे पर बैठकर गहरा सांस लेती बोली, ये जो मैक्सी उसने पहनी थी ये महकार नहीं उसे दी थी, क्योंकि जैसे कपड़े वो चाहती थी उतनी रकम आयशा के बाप के पास नहीं थी। और बाकी कुछ सूट जो महंगे तो थे पर उसकी माँ के लाए गए उसे ओल्ड फैशन लग रहे थे, तो उसने महकार से बात शेयर की, जिसने 2 मिनट में उसकी परेशानी सुलझा दी और साथ ब्लैक हील भी अपनी दे दी। और ऊपर से कर्म हो गया जब साइम ने उसे महंगा तरीन नेकलेस दिलवाया। अब इतना मेकअप करना तो वो भी जानती थी और अपने माहिर तरीन हाथों से खुद को 4 चांद बना दिया कि जिसकी नजर पड़ती तो पलटने का नाम ही ना लेती। और ये हाल वो हैदर का देखना चाहती थी। जब वो उसे देखेगा और देखता ही रह जाएगा, तब आयशा को लगेगा उसकी मेहनत का अजर उसे मिल गया है। अपने तहत वो तकवा से तारीफ सुनने गई थी, पर वहां से जो रिस्पॉन्स मिला उसका दिल राख करके रख दिया। उसे लगा तकवा भी कहेगी कि उसे भी मेकअप कर दे, पर उसकी तैयारी को देखकर वो खुद ही गिरते गिरते बची थी। ऊपर से उसका लहजा। अरे बेवकूफ़, वो तो चाहती यही है कि तुम उसकी बातों में आकर सारा मेकअप उतार दो और उसकी तरह एक मिडिल क्लास बनकर चलो। वो जलती है जब लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। वो चाहती ये है कि तुम भी ऐसी बनकर चलो कि तुम्हारी तरफ कोई देखे भी ना, और तुम हो कि उसकी बातों को सर पर सवार करके उसके प्लान को कामयाब कर रही हो। नेहकार की बात पर आयशा ने डिबडिबाई नजरों से देखा। भाभी, पर वो ऐसा क्यों चाहती है? मैं उसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। बहन समझती थी उसे, पर वो नागिन निकली। वो भराई आवाज में बोली तो महकार ने सर पीट लिया। बेवकूफ़ हो, अव्वल दर्जे की तुमाशी। मैंने तुम्हें बताया तो था लड़की कि ऐसी लड़कियों को जब कोई नहीं पूछता और उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है तो वो दूसरों की खुशियां निगलने की कोशिश करती हैं, और फिर वो दूसरा चाहे उसे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो, उन्हें तो बस अपनी कमतरी का बदला लेना होता है। महकार की बात आयशा के दिल पर लगी। हाँ, यही तो वजह थी तकवा के रोक टोक की, वरना दूसरे तो सिर्फ बहाने थे। पर मैं उसे अपनी खुशियां निगलने ही नहीं दूंगी भाभी। अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की भी तो ऐसा सबक सिखाऊंगी, सारी जिंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो जानती नहीं कि इस बार उसका पाला किस लड़की से पड़ा है। आयशा नफरत और हकारत से एक अज़म से बोली। महकार की बतीसी बाहर आ गई। वो चाहती भी तो यही थी, आयशा को अपनी मुट्ठी में करके उसे अपने भाई की शादी करवाए और अपने मुस्तकबिल के देखे गए सपने बगैर किसी रुकावट के पूरे करे। उसे पता था उसके खानदान में लड़कियां कितनी तेज हैं जो उसके भाई से शादी के बाद उसकी जायदाद पर पूरा हक जमा लेंगी और उसे ठेंगा भी नसीब ना होगा। वो सड़ती रहेगी इस घुटन ज़दा घर में। पर जब उसकी नज़र आयशा पर पड़ी तो उसे सब कुछ समझ आ गया कि उसे करना क्या है। आयशा एक इंतहाई दर्जे की अहमक और जज्बाती लड़की थी। उसे जिस राह पर भी धक्का दे दो वो चलना शुरू कर देगी बगैर अंजाम का सोचे, और उसे देखकर ही महकार को लगा यह है खजाने की कुंजी। खूबसूरत वो इतनी थी कि नज़र एक बार पड़ जाए तो पलट ना भूल जाए। दूसरा गरीब थी, शौकीन भी, और फिर महकार को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी कि वो खुद उसकी तरफ खींची चली आई। अब ये हैदर की चाह में था, दौलत की हवस में, पर उसे क्या, उसके पास बहुत प्लान थे। शाबाश मेरी शहजादी, मैं सुनना भी यही चाहती थी। तुम्हें जरा सी बात पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हें अपना सारा फोकस इन बकवास बातों से हटाकर हैदर पर दो और आज देखो अपने हुस्नो यामत हेस हुस्न का कमाल। महकार ने आंख मारकर कहा तो आयशा कह लगा उठी। हाय भाभी, काश आप मेरी सगी बहन होती। आयशा उसके गले में बाजू डालकर मोहब्बत से बोली। फिक्र मत करो, सगी नन जरूर बनकर दिखाऊंगी। वो उठकर साड़ी का पल्लू ठीक करती बोली तो आयशा ने दिल की गहराइयों से इंशाल्लाह कहा। हैदर ने गाड़ी भेजी है लड़की, आ जाओ। सायरा बेगम लाउंज में आकर बोली। वो अभी जा रही थी, खासकर अपने भाई के लिए। तकवा, साहिल को रूम से लेकर आओ। सीढ़ियां उतरती तकवा पर एक नजर डालकर वो बोली और आयशा के साथ आगे बढ़ गई। तकवा आयशा की पुश्त को देखते दिल महसूस कर रह गई। माशाल्लाह आपी, आप बिल्कुल कुरान पाक पढ़ती हैं। जो लड़कियां नहीं होती किताब में वो प्यारी सी वो लग रही हैं। माशाल्लाह आपी, आप बिल्कुल कुरान पाक पढ़ती जो लड़कियां नहीं होती किताब में, प्यारी सी वो लग रही हैं। साहिल स्काफ में मौजूद तकवा के पुरनूर चेहरे को देखते बेसाख्ता बोला तो तकवा झेम गई। चलो, इंतजार हो रहा है हमारा साहिल साहब। वो उसके गाल पर बोसा देकर हाथ पकड़ती साथ निकली। मामू जान तो गए। साहिल मुसलसल उसे देखता बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने साहिल? तकवा ने बड़बड़ाहट सुन ली थी तो साहिल ने अपने छोटे कंधे उचका दिए। नहीं, खुद पर रोना आ रहा है कि मैं आपसे छोटा क्यों हूँ। वो शरारत से देखता बोला तो तकवा मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ साहिल, बहुत गलत बात। वो उसके कान पकड़कर बोली तो साहिल जुबान दिखाकर भाग गया।
आप समझने की कोशिश करती रहें, हम बहुत आगे निकल गए हैं आप ही। वो पीछे से बोलकर भाग गया और तकवा नासमझी से उसकी पुश्त को देखती बाहर आई। वो सायरा बेगम और साहिल एक गाड़ी में थे, हारून, महकार और आयशा दूसरी गाड़ी में। भाभी, घर है कि महल? आयशा शाह विला में पहुंचकर जब लॉन में आई तो बेसाख्ता बोली। उसकी बात पर हारून और महकार दोनों हंस पड़े। ये घर है हैदर शाह का मेरी जान, उसे साथ लेकर वो बोली और कुछ झिकते सरगोशी में कहा, तुम्हारा मुस्तकबिल का ससुराल। उसकी सरगोशी पर आयशा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। तकवा, साहिल, सायरा बेगम के साथ उनके पीछे थी। एंट्रेंस पर हामिद साहब और हैदर दोनों ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस थे। अपने डैड को देखकर महकार की आंखों में पानी आ गया। नहीं डैड, वो आगे बढ़कर बोली तो चीफ जस्टिस वहाज जैदी से बगलगीर होते आवाज पर मुड़े। ओ माय डॉल। उसने बाहें फैलाई तो महकार उनमें समा गई। इन दोनों बाप बेटे की मोहब्बत पर हैदर मुस्कुराते उनके पीछे देखा। आयशा पर एक नजर डालकर उसकी बेचैन नजरें तकवा को ढूंढने लगीं और जब उस पर नजर पड़ी तो हैदर का दिल धड़क उठा और नजरें थीं कि पलटना भूल गईं। वो तैयार होकर नहीं आई थी, ना ही फैंसी महंगे कपड़ों में मलबूस थी। आम से घेरदार फ्राक में स्कार्फ पहने वो सायरा बेगम को सहारा देकर आ रही थी। ऐसा क्या था कि हैदर का दिल बेख्तियारी पर उतर आया था? उसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। आयशा, जो फुल मेकअप में हसीन मुजस्मा लग रही थी, उससे भी खास और खूबसूरत उसे तकवा लगी। हैदर जानता था अपने तहत तो उसने पूरी कोशिश की होगी कि सादगी में रहे, पर शायद उसके चेहरे का नूर उसे सबसे अलग और नुमाया कर गया था, जिससे शायद वो बेखबर थी, वरना वो खुद को 7 पर्दों के पीछे छुपा लेती। ये हैदर की राय थी। सबसे मिलकर वो अंदर जाने लगे, जहाँ काफ़ी बिजनेसमैन, टाइकून और दूसरे भी अमीर कबीर लोग मौजूद थे अपनी बेगमात के साथ। हैदर की नज़रें तकवा पर टिकी थीं और जब आयशा ने उसे देखा तो उसकी नज़रों का जाविया अपने पीछे देखकर वो मुड़ी। उसी पल खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करते तकवा ने भी नज़रें उठाईं। उन दोनों की नज़रों के टकराव पर आयशा हक्का बक्का देखती रही। क्या तकवा उसकी खुशी को निगलने वाली थी? उसके दिल से हुक उठी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा और कदम हैदर की जानिब बढ़ाए। तकवा ने उसी पल ही नागवारियत से नज़रें झुका लीं। हैदर के दिल पर जैसे फूल बनकर उसकी नागवार नज़रें गिरीं और होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। कैसे हैं आप? आयशा उसके सामने आई तो हैदर ने उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, वो मजबूरन कहने लगा, वरना उसका दिल नहीं कर रहा था उसकी तरफ देखने को। कैसा लिबास पहनकर आई थी? हाफ स्लीव से झांकते उसके सफ़ेद दूधिया बाजू, नाजुक पतली कमर, बगैर दुपट्टे के वो दावतनामा बनी हुई थी और हैदर को उससे नागवारियत महसूस हो रही थी। वो मजीद उसके मुंह खोलते देखकर अंदर की जानिब एक्सक्यूज़ करता चला गया। एक बार फिर आयशा अपनी तौहीन पर बल खाकर रह गई, पर उस दिल का क्या करती जो उसकी जिद लगाए बैठा था। ये राज उस पर कुछ देर पहले ही आश्कार हुआ था कि हैदर को किसी और का तस्वुर करते ही उसकी रूह फना हो जाती। वो शायद पागल ना हो जाए, उसे अपनी जुनूनियत से डर लगने लगा था, और हैदर से भी, जो उस पर एक गलत निगाह डालना भी गवारा नहीं कर रहा था। हामिद साहब बहुत नरम पुरशफ़क़त तबीयत के मालिक थे। उनके होंठों पर हमा वक्त मुस्कुराहट रहती थी। वो तकवा से भी मिले और उसके सर पर हाथ रखकर कामयाबी की दुआ दी। हैदर ने उसे बताया था कि डॉक्टरी कर रही है, और आज मिलकर उसे देखकर उसे लगा कि उसके बेटे ने हीरा चुना है, और उसे फ़ख्र होने लगा अपनी परवरिश पर। जब जब उसकी नज़रें तकवा पर पड़तीं, उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराइयों को देखते हामिद साहब दिल से दुआ देते अच्छे मुस्तकबिल की। उनका इरादा 1 माह सेटल होने के बाद उसके भाई दानियाल से तकवा का रिश्ता मांगने वाला था, अपने घर की रौनक मांगने वाला था। इतने वक्त के बाद तौहीद शादी के लिए राजी हुआ था तो वो क्यों वक्त लगाता? उसे हैदर से भी जल्दी थी अपनी गोद में पोते पोतियों को उठाने की। हाँ तो हामिद, कैसे फैसला किया 25 साल बाद अपने वतन लौटने का? चीफ जस्टिस वहाज जैदी एक बाजू अपनी बीवी हानिया की कमरे में डालते दूसरे से गिलास पकड़े हामिद साहब से मुखातिब हुए, जो उनका जिगरी यार था। बस करना पड़ा, वतन की कशिश खींच लाई अपने मुकाम पर। गिलास मुंह से लगाते हामिद साहब बोले तो वहाज साहब कहका लगा उठे, बहुत खूब, मतलब शायद सच ही कहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते एक नज़र मिसिज हानिया पर डालकर हामिद साहब से कहा, यही समझ लें, वो खुश दिली से बोले। और फिर वहाज साहब के हैदर और महकार का पूछने पर उन्होंने हैदर, महकार और हारून से मिलवाया। हैदर शाह की शख्सियत से, वजाहत से वो दोनों मुतासिर हुए थे। उसकी आंखों में इज्जत, एहतराम, सुलझा हुआपन देखकर मिसिज वहाज को अपना बिगड़ा बेटा याद आया और हामिद साहब पर रश्क। मिसिज वहाज और महकार बहुत अच्छे से मिली और गपशप करने लगीं। फिर उनके साथ आयशा भी शामिल हो गई। आयशा को देखकर मॉडर्न मिसिज वहाज भी तारीफ किए बिना ना रह सकीं, और हमेशा की तरह आयशा ने अपना हक समझकर वसूल किया। हैदर की नज़र बार बार भटककर साहिल और सायरा बेगम के साथ सोफे पर बैठी तकवा पर जा रही थी, जो सायरा बेगम की बात सर झुकाए सुनती मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में इस कदर कशिश लगी कि हैदर का दिल बार बार उसकी जानिब खींचने लगा कि वो इस पर अमल कर भी देता। जब हामिद साहब ने उसे होश में लाने के लिए कंधे पर हाथ रखा, वो चौंक कर देखने लगा और हामिद साहब की आंखों में शरारत देखकर वो मुस्कुरा कर रह गया। दूसरी तरफ आयशा की भी वक्फे वक्फे
से उस पर नजरें थीं और हैदर की नज़रों के ताक़ुब में देखकर वो सर से पांव तक जल कर रह गई। इसका मतलब यही था, मेहकार भाभी ठीक ही कहती हैं, वो दिल में बोली, पर उसकी सुर्ख होती आंखें उसके ज़ब्त की गवाही दे रही थीं। अगर महफिल ना होती तो वो अभी जाकर तकवा का नक्शा ही बिगाड़ देती। साइम नहीं आया वहाज। हामिद साहब की आवाज़ हानिया के कानों में भी पड़ी और उन्होंने वहाज साहब की जानिब देखा। वहाज साहब की खामोशी पर हैदर ने भी एक पल को देखा जहाँ कुर्ब के साए लहराए थे। तुम मेरे जिगरी दोस्त हो हामिद, तुमसे क्या छुपाना। हामिद साहब के कंधे पर हाथ रखते उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा। हैदर भी देखने लगा कि क्या बात थी जो वो इतने गमगीन लग रहे थे। मिसिज वहाज के चेहरे के तासुरात भी वही थे। साइम, मैं आपके पीछे हूँ चीफ जस्टिस साहब। भारी गंभीर आवाज़ वहाज साहब के पीछे से आई। सबकी गर्दनें मुड़ी आवाज़ पर। पीछे ही ब्लू शर्ट और जीन्स में नीली आंखों में शरारत समाये साइम खड़ा था। उसके लबों मुखातिब पर सबकी नज़रें उस पर जम गईं। हैदर ने साइम को देखकर मुठियां भींच लीं। वो कैसे भूल सकता था उसे, ये तो वही था, यूनी और ज्वेलर शॉप वाला। जानी पहचानी आवाज़ पर तकवा ने भी सर उठाया तो साइम को वहाँ देखकर हैरान रह गई और उसके साथ मिसिज वहाज को देखकर वो शशदर कि ये जज साहब और बिजनेस वूमेन हानिया जैदी का बेटा है। इतना बदतमीज़ गुंडा टाइप इंसान इतने शरीफ लोगों की औलाद कैसे हो सकता है। तकवा तो अपनी जगह पर जब आयशा की नज़र उस पर पड़ी तो वो सदमे में रह गई। उसे अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। अगर आज साइम को मालूम हो गया कि उसका कोई रिश्ता नहीं शाह फैमिली से, बल्कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, तो एस ग्रुप तो यूनी में उसे बदनाम कर देगा और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उसने डरते डरते तकवा को देखा जो वापस साहिल के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं थी। आयशा की बेइज्जती से आंखें डुबडुबा गईं। वो कुछ खिसक कर मेहकार भाभी के करीब हुई। पार्टी में मौजूद चीफ जस्टिस साहब और एक कामयाब बिजनेस वूमेन हानिया जैदी के नवाब बेटे को देखकर मीडिया वाले खट खट तस्वीरें निकालने लगे। साइम, ये किस लहजे में बात कर रहे हो और अपना हुलिया देखो, क्यों आए हो यहाँ? अगर पहले मना कर दिया था तो अब क्यों? मिसिज वहाज उसे बाजू से पकड़कर साइड करती बोली तो हामिद साहब ने मीडिया को वहाँ से रवाना करने का इशारा किया। हैदर को, जिस पर उसने सर को खम देते हुए अमल किया, और कुछ देर में अब वहाँ मीडिया का एक भी फर्द नहीं था। ये कैसे हुआ वजी? हामिद साहब को याद था जब वो पाकिस्तान से जा रहा था तो वहाज साहब अपने भतीजे के साथ उसे सी ऑफ करने आए थे। तब पहली बार वो 3 साल के साइम से मिला था और उसे इतना पसंद आया कि उसके दिल में नक्श कर गया। 3 साल का बच्चा होकर इतना तमीज़दार और बाइखलाक था कि उसने अपने 4 साल बेटे हैदर को देखकर ये सोचा था, इंशाल्लाह दोनों में कोई फ़र्क ना होगा और वो पाकिस्तान वापस आकर सबसे पहले साइम से ही मिलेगा, क्योंकि पहली ही नज़र में वो बच्चा उसके दिलो दिमाग में बैठ गया था। और उन्होंने आकर भी यही ख्वाहिश जाहिर की थी जिस पर वहाज साहब ज़रा हिचकिचाए थे। तब वो समझ नहीं पाए, पर अब देखकर सकते में थे हामिद साहब। भाई साहब की मौत के बाद वो बिल्कुल बदल गया हामिद। कुर्ब अजियत से वहाज साहब ने गहरा सांस भरकर बोले तो हैदर के साथ हारून भी उस खूबसूरत मगर बिगड़े लड़के को देखने लगे जो अपनी माँ की आंखों में इल्तिजा को नज़रअंदाज किए पार्टी में मौजूद लोगों पर सरसरी नज़रें घुमा रहा था। उसकी नीली आंखें हमा वक्त सुर्ख रहती थीं, जैसे अंदर कोई बड़ा तूफान जब्त में हो। क्यों आपको पसंद नहीं आया मेरा आना या आपके शोहर साहब को? साइम ने झटके से बाजू छुड़वा कर पूछा और उसकी नज़रें किसी और को ढूंढने लगी जो मेहकार भाभी के पीछे ही नुमाया हुई। साइम, जाओ प्लीज़, यहाँ तो बख्श दो, कितने बड़े लोग मौजूद हैं, हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालो। मिसिज वहाज ने उसके हाथ थाम कर भराई आवाज़ में कहा। फिक्र मत करो, मैं यहाँ आप दोनों का जनाजा उठाने नहीं अपने काम से आया हूँ। वो आयशा के दिलकश सरापे को देखते हुए बोला तो मिसिज वहाज ठटक गई। क्या मतलब? वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगीं और उसकी नज़रें मेहकार के साथ खड़ी खूबसूरत सी लड़की आयशा पर देखकर दिल थाम गईं। पागल तो नहीं हो गए हो? वो मिस्टर शाह की रिश्तेदार की बेटी है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे साइम। आयशा का तारुफ जिस अंदाज में मेहकार ने करवाया था उससे तो यही बावर था वो बहुत स्पेशल है और जल्द ही उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। ओह, अब तो और मज़ा आएगा इस चिड़िया से खेलने में। क्यों? उसने अपना अबरू चुकाया। क्या हमें भूल गए साइम साहब? डूबते दिल के साथ मिसिज हानिया उसे हाथ जोड़ने वाली थी कि हामिद साहब बीच में आ गए। आप याद ही कब थे? सॉरी, आपका तारुफ। पैंट की जेबों में हाथ फंसाए साइम हामिद साहब को देखता बोला तो हानिया और वहाज साहब शर्मिंदा हो गए। अलबत्ता हैदर ने मुठियां भींच लीं कि क्या ज़रूरत थी डैड को इस लोफर को इन्वाइट करने की। यकीन नहीं होता ये चीफ जस्टिस का बेटा है, हारून ने हैरत का इजहार करते कहा तो हैदर ने लब भींच लिए। उसके जवाब पर हामिद साहब ने कहा लगाया, ये बात तो लाखों की है, जो याद नहीं होते उन्हें पहचाना भी कहाँ जाता है, पर हमें तो आप याद हैं अव्वल रोज़ से साइम जैदी। और रहा मेरा तारुफ तो मुझे हामिद शाह कहते हैं, आपके डैड का बचपन का दोस्त। हामिद साहब ने हाथ बढ़ाया। साइम ने उनके हाथ को देखकर अपनी माँ को देखा जिसकी आंखों में इल्तिजा थी कि सिर्फ यहाँ इज्जत रख लो। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, पर अगर आप वहाज साहब के दोस्त हैं तो जानते होंगे वो मेरे डैड नहीं अंकल हैं।
एक्सक्यूज़ मी। साइम एक तमस्कुर भरी नज़र वहाज साहब पर डालकर आगे बढ़ गए और हैदर ने इस कदर अपने बाप की इंसल्ट पर आगे बढ़कर हैदर इस कदर अपने बाप की इंसल्ट पर आगे बढ़ा कि हारून ने उसका बाजू पकड़ लिया। कूल डाउन हैदर, माहौल ख़राब हो जाएगा। देखो तुम्हारे डैड मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगा। हारून के रोकने पर हैदर आसपास गेस्ट को देखकर अपने आप को रिलैक्स करने लगा। बच्चा है, एक दिन संभल जाएगा। हामिद साहब ने वहाज साहब के कंधे पर थपकी दी। वो मायूस सर हिलाकर रह गए, जानते थे ऐसा कभी नहीं होने वाला था। हाय मिस आयशा। साइम चलता हुआ आयशा के सामने रुका और मिसिज वहाज ने देखकर थूक निकली। वो उसे कई बार बेइज्जत करवा चुका था और अब पता नहीं क्या करने वाला था। जानती थी उन्हें बेइज्जत करने का मौका वो कभी भी हाथ से नहीं जाने देगा। उन्होंने चुपके से आंखों से आंसू साफ किया, जो किसी की नज़रों से ओझल ना रह सका। हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। मिस्टर वहाज ने हानिया बेगम को हौसला देते कहा तो वो सर हिला गई। तुम देख रहे हो वजी, वो क्या करने वाला है। उन्होंने आयशा के सामने खड़े साइम की तरफ इशारा किया तो वहाज साहब सर हिलाने लगे। डोंट वरी, अगर इस बार उसने कोई गलती की तो वो सारी उम्र भरेगा। उन्हें अपने साथ लगाते हुए कुछ बरहम होकर बोले तो मिसिज वहाज परेशानी से देखती रह गई। जी। आयशा की जुबान हकला गई। उसने पास खड़ी मेहकार का हाथ पकड़ा जो ठंडा होकर कांप रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कम चीज़ आपकी खूबसूरत गर्दन में आकर। आयशा उसकी बात पर शर्मिंदा होती जबरन मुस्कुराई। क्या ज़रूरत थी पहन कर आने की, अब क्या समझेगा। इसके पास कोई दूसरा नेकलेस नहीं था जो मेरा मिलते ही पहन लिया। जी, मेरे ड्रेस से मैचिंग कर रहा था तो पहन लिया। थैंक्स इस ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए। वह गहरा सांस भरकर बोली तो साइम हंस दिया। बहुत खूब, मतलब हम आपकी पसंद से पहले ही वाकिफ़ हैं। क्यों मिस। उसने पास खड़ी मेहकार को मुखातिब किया तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। क्या हो रहा है यहाँ। साइम को डरी हुई आयशा के पास देखकर हैदर से जब जब्त ना हुआ तो उनके सर पर पहुंचकर सर्द आवाज़ में बोला। कुछ भी था, वो उनके घर आई थी मेहमान बनकर और हैदर पर यह गवारा नहीं था कि कोई शरीफ लड़की को डराए या खौफजदा करे, जो इस वक्त आयशा थी। उसके हुलियों को उसने नादानी तस्लीम कर लिया था, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर तो नहीं, हर कोई अपनी सोच अपने हिसाब से था। हर जगह टपक पड़ना। साइम हैदर को फिर से देखकर बुरा मुंह बना गया। यूनी में मिलते हैं। वो आयशा को मुस्कुराती नज़रों से देखता काउंटर की तरफ चला गया, जैसे उसके अपने घर की पार्टी थी। आप इसे जानती हैं आयशा। साइम के जाते ही हैदर आयशा से मुखातिब हुआ। मेहकार भी देखने लगी। नहीं, मेरा मतलब है हाँ ये। वो कुछ सोचकर हैदर की आंखों में देखने लगी और गहरा सांस भरकर अपनी सोच पर अमल करने लगी। क्या ये। हैदर ने ब्रूज काए। ये तकवा को पसंद करता है और शायद तकवा भी। एक पल को उसका दिल धड़का और हाथों में पसीना आ गया। पास खड़ी मेहकार की तो आंखें फैल गईं। क्या सच। एक पल न लगा उसे समझते आयशा को, क्योंकि वो जानती थी तकवा किसी को नज़र उठाकर देखना तो दूर पसंद करे नामुमकिन था। क्या बकवास कर रही हो। एक लगाऊंगा सारी बकवास इस दिमाग से निकल जाएगी। हैदर आयशा पर कहर बरसाती नज़र डालकर नीची आवाज़ में गुर्राया और वहाँ से लंबे लंबे डग भरता चला गया। उसका बस चलता तो तकवा के बारे में ऐसी बकवास करने पर उसका गला दबा देता। क्या कर रही थी। मेहकार उसे एक्साइट करते बोली, जिसकी आंखों में आंसू बह निकले थे। इस सहर को ख़त्म कर रही थी जिससे इस नागिन ने उसे जकड़ा है। अपना बाजू मेहकार की गिरफ्त से आज़ाद करवाते वो आंसू साफ करती जहर खून लहजे में गोया हुई। क्या मतलब, कौन सा सहर। मेहकार समझी नहीं। आप खुद देख लें। आयशा ने हाथ पकड़कर सामने दोस्तों के घेरे में खड़े हैदर की जानिब रुख किया, जिसकी नज़रें कभी कभी भटक कर तकवा पर जा रही थी और उसकी आंखों में जो मोहब्बत की दुनिया आबाद थी उस पर मेहकार का मुंह खुल गया। ये कब हुआ। मेहकार का मुंह सिर्फ हिला। आप सिर्फ मुझे समझाती रहीं, एक बार अपने भाई पर नज़र रखती तो मालूम होता कब हुआ ये। वो गेस्ट की तरफ पीठ किए ज़ारो कतार बेआवाज़ रोने लगी। क्या पागलपन है आयशा। मेहकार उसकी सिसकियां देखकर उसे अपने साथ लेकर हॉल से निकलकर रूम्स की तरफ सीढ़ियां चढ़ती जाने लगी और पीछे किसी बेजान पुतली की तरह आयशा घसीटती गई। अब ठीक से बताओ कैसे हुआ ये। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाज़ा लॉक करती साथ बैठी। ये मुझसे क्या पूछ रही हैं आप। मुझे क्या पता ये कब हुआ और क्यों। आपके भाई को इस काली से प्यार होने लगा। मैं कितनी मेहनत से सज संवर कर उनके लिए आई थी और सबकी नज़रों में सताइश देखकर जब हैदर की नज़रों में देखा तो वहाँ मेरा नहीं बल्कि उस तकवा का अक्स था। वो कहती अपने अंदर की हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। मेहकार तो सकते में थी। आपने अच्छा नहीं किया मुझे उसके ख्वाब दिखाकर। इससे बेहतर था पहले मैं सिर्फ उसके पैसे को चाहती थी और ना मिलने से दिल तो ना टूटता और इस साइम ज़ैदी को हाँ कर देती जो पागल बना फिर रहा है मेरे पीछे। पर आपने मेरी आंखों में ख्वाब सजाकर मेरे दिल में उसे बिठाकर अब उसे किसी और का होते मैं नहीं देख सकती। मैं पागल हो जाऊंगी, मार दूंगी उसे या खुद को। वो जनूनी होकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते भारी आवाज़ में रोते हुए बोल रही थी, पर मेहकार की सुई वहीं अटकी थी। क्या कहा। दौलत। शौक भरी आवाज़ मेहकार की गूंजी तो आयशा ने सर उठाया और उसकी आंखों में देखकर एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है बेखुदी में। बेसाख्ता ही नज़रें चुराकर उसने अपना लब दबाया।
تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں میرے بھائی سے محبت نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی عائشہ؟ حیرت تھی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی بھابھی، میں نے آپ کو اپنی بڑی بہن مانا ہے۔ وہ شرمندہ سی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں یہ سچ ہے، میں حیدر شاہ کی دولت سے محبت کرتی ہوں اور اسے حاصل بھی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ بھی امیر ہے پر حیدر جتنا نہیں۔ اگر میں خوبصورتی دیکھتی تو سائم زیدی کو کب کا ہاں کر چکی ہوتی، کیونکہ وہ ایک حسین ترین لڑکا ہے، مجھ پر جان دینے کے لیے تیار ہے، جو آج کل کی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر یا چاہنے والا اس پر جان وار دے، اسے پلکوں پر بٹھائے رکھے، اس کے ناز نخرے اٹھائے۔ جو سائم میں مجھے اپنا ایسا مستقبل آسانی سے صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ پورا پاگل ہے میرے پیچھے۔ ایک جھلک تو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی کہ شاپ میں معلوم ہوتے کیسے پارٹی میں آ گیا میرے پیچھے پیچھے۔ اس نے کہتے مہکار کی طرف دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پر بھابھی یقین مانے، اب مجھے اس کی دولت سے زیادہ حیدر سے محبت ہے۔ پتہ نہیں کب اسے روز رات کو میسج کرتے، صبح کا میسج کرتے، اس کا کھڑکی سے روز صبح دیدار کرتے۔ کب مجھے بھی محبت کا مرض لگ گیا مجھے نہیں معلوم ہوا۔ بھابھی میں قسم کھاتی ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں مر جاؤں گی بھابھی، آپ کچھ کریں نا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مہکار کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ مہکار نے موبائل ایک طرف رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ تم فکر مت کرو میری جان، حیدر تمہارا ہی ہوگا، اور جہاں تک دولت کی بات ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں جس طرح کی گھٹ گھٹ کر تم زندگی گزار رہی ہو اور جو تمہاری عمر ہے اس میں یہ سب عام باتیں ہیں۔ چلو جاؤ منہ دھو کر آؤ فاسٹ، تب تک میں کچھ سوچتی ہوں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا کہ میرا اتنا حسین بھائی اس سانولی سے شادی کرے یا محبت میں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے گال تھپ تھپا کر وہ بولی تو عائشہ اسے دیکھتے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو بھابھی، آئی لو یو سو مچ۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ اس کے شدت جذباتیت کے اظہار پر مہکار مسکرا دی اور عائشہ اپنے مزید جذباتیت کو کنٹرول کرتے اٹھی۔ وہ شراب کا گھونٹ گھونٹ گلے سے اتارتا کاؤنٹر سے ٹیک لگائے سامنے چھوٹے سے بچے سے باتیں کرتی تقویٰ کے حجاب میں چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو کسی بات پر مسکراتی، پاس بیٹھی اس بوڑھی عورت کی باتیں بھی سن رہی تھی جو حامی صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ آپی جوس لا دیں، گلا سوکھ گیا ہے، ساحل نے کاؤنٹر پر جوس کے گلاس کو دیکھتے ہوئے تقویٰ سے کہا۔ تقویٰ نے ویٹرز کو دیکھا جو مختلف مشروبات سرو کر رہے تھے۔ کچھ مشروبات پھر اسے افسوس ہوا، کیسے حرام چیز کو پانی کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ ایکسکیوز می بھائی، اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو پکارا تو وہ مسکراتا ہوا آیا۔ یس سسٹر، عزت دینے پر عزت ملتی ہے۔ انکل مجھے پیاس لگی ہے، جوس لا دیں، تقویٰ کی بجائے ساحل بولا۔ وہ سر ہلا کر سر کو خم دیتا تقویٰ سے پوچھنے لگا کچھ چاہیے تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ ساحل کے لیے جوس کا گلاس لینے چلا گیا۔ واؤ آپی، آپ پیئے نا۔ ساحل نے جوس کا گلاس تقویٰ کی جانب کیا تو وہ مسکرا کر انکار کر گئی اور عائشہ کی تلاش میں نظریں گھمانے لگی کہ سامنے کھڑے حیدر سے اس کی نظریں ٹکرا گئیں۔ وہ سامنے ہی تھا، اس کے اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لڑکیوں نے بھی گھیر رکھا تھا اسے۔ تقویٰ سے نظریں ملتے حیدر نے نامحسوس انداز میں تبسم پھیلایا لبوں پر۔ وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ یہ انسان اچھا خاصا پیچھے پڑ گیا ہے، سخت ناگواری سے اس نے سوچا۔ اسے عائشہ اور مہکار بھابھی کہیں نہیں ملی تو مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آپی پیئیں بس۔ ساحل نے ضد کرتے گلاس تقویٰ کے منہ کی طرف بلند کیا کہ اچانک حجاب کو ٹھیک کرتی تقویٰ کا ہاتھ لگ گیا اور آدھا گلاس اس کے اوپر آ گرا۔ او ساحل، یہ کیا کیا بچے؟ حامی صاحب نے تقویٰ کو دیکھتے کہا تو وہ جبرن مسکرا دی۔ نانو گر گیا، سوری۔ ساحل اپنی غلطی پر سر نیچے کرتے معافی مانگنے لگا۔ تقویٰ کو بے تحاشا اس پر پیار آیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی ساحل۔ وہ ٹیشو سے کپڑے صاف کرتی بولی تو حامی صاحب مسکرا دیے شفقت سے۔ جاؤ بیٹا، اوپر جا کر انہیں صاف کر کے آؤ۔ حامی صاحب کا خیال کرتے سائرہ بیگم سخت نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر بولی تو تقویٰ مسکراتی سر ہلا کر وہاں سے اٹھی۔ سائم نے مسکراتے اسے سر سے پیر تک دیکھتے منہ سے گلاس لگایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تقویٰ نے محسوس کیا کافی لڑکیوں کی اس پر حیرت بھری نظریں پڑی اٹھی ہیں، کیوں وہ اچھے سے جانتی تھی اور نظر انداز کر گئی۔ ہائے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سویرا۔ ایک لڑکی مسکراتے سائم کے سامنے آئی اور سائم کی نظر جو سیڑھیاں چڑھتی تقویٰ پر تھی اس نے آنکھیں پھیر کر اپنے سامنے دیکھا۔ گھٹنوں تک آتے لباس میں ہاتھ میں ایک ادا سے گلاس پکڑے، اونچی ہیل میں وہ اس کے قد کے برابر آ گئی تھی۔ بائے مس اندھیرا، اگر دوسری بار ملاقات ہوئی تو آپ کی اس دعوت کا بھرپور حظ اٹھائیں گے، پر اس وقت ڈاکٹر صاحب کو بہت ضروری کام سر انجام دینا ہے۔ وہ اسے بالکل قریب ہو کر کان میں کہتا آگے بڑھ گیا اور وہ مسکراتی اس کے دلکش پرفیوم کی خوشبو قریب سے سونگتی بت بن گئی۔ تقویٰ جو باتھ روم میں اپنا ڈریس صاف کر رہی تھی کیونکہ جوس گرنے سے چپچپاہٹ ہو رہی تھی، روم کے ڈور جو وہ کھلا چھوڑ آئی تھی بند ہونے کی آواز پر گھبرا کر جلدی سے تولیے سے صاف کرنے لگی اور باہر نکلی۔
और सामने दरवाजे से टेक लगाए खड़े उसकी नज़र नीले आंखों वाले उस आवारा और बाश इंसान पर पड़ी और उसकी आंखों में सुर्खी देखकर तकवा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। उसने घबरा कर बेड पर रखे अपने हिजाब को देखा और साइम ने उसे बगैर दुपट्टे के वो सादगी में भी क़यामत लगी उसे। कशिश तो उसे तकवा में महसूस हुई जो वो आयशा के पीछे भाग रहा था। ये क्या बदतमीजी है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तकवा उसकी नज़रों से खाइफ होती जल्दी से आगे बढ़कर अपना हिजाब उठाती पहन गई और दुपट्टा अपने कंधों के गिर्द ओढ़ लिया। उसका दिल रो रहा था कि ये पागल बदतमीज़ इंसान यहाँ क्या कर रहा है। अगर किसी ने आके देख लिया तो वो जीते जी मर जाएगी, पर उसे मजबूत होना था और यहाँ से निकलना था कैसे भी करके। हटो पीछे मिस्टर, वो आगे बढ़ाई और उसके मुकाबले आकर गुस्सा जब्त करती सर्द आवाज़ में बोली। अंदर ही अंदर उसकी खौफ से जान आधी हो रही थी। एक इज्जतदार लड़की का यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेले रूम में होने का ये मुआशरा उसकी क्या हालत करता, वो सब सोचकर झुरझुरी ले उठी। वैसे तो मिस तकवा, लड़कियां खुद चलकर साइम ज़ैदी के पास आती हैं, पर आज साइम ज़ैदी खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। वो अपने मखसूस स्टाइल में कहता सीधा होकर खड़ा हुआ और तकवा को सर से पैर तक देखने लगा। उसका देखना ऐसा था कि एक पल को वो सहम गई। कितने लोग ही एक रात के लफ्ज़ थे या सीसा। तकवा सर धोकर बुत बन गई। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी खराफात बकने की? शदीद गुस्से और तैश में वो कांपती अपने हाथ का निशान उसके रुखसार पर छोड़ने वाली थी कि साइम ने हवा में ही थाम लिया। हाँ, ऐसी गलती मत करना, उसने मुस्कुराते कहकर उसके हाथ को झटके से छोड़ा कि तकवा को उसकी ज़रा सी पकड़ भी किसी हैवान की लगी। उसे लगा उसका हाथ कलाई से टूट चुका है। गंभीर होती सूरत हाल को देखकर उसका आंसू लुढ़क आया गाल पर, जिसे साइम ने खौफ से देखा। देखो लड़की, बंद करो ये नाटक, कोई नहीं है यहाँ, और उतारो इस नाम निहाद पर्दे को। सिर्फ हाँ करो, साइम ज़ैदी पैसों की बारिश कर देगा तुम पर। तकवा को लगा आज वो भी बीच बाजार में बेपर्दा हो गई है। जाकर ऐसी घटिया ऑफर अपने किरदार जैसी औरतों को करो जो तुम्हारे आगे बीत जाती हैं। अब हटो, वरना मैं चीख चिल्लाकर सबको तुम्हारी जलील सूरत दिखाऊंगी। अपने हिजाब को सख्ती से पकड़ती वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ गुर्राई। साइम हंसा तमस्कुर से। ओह, बहुत देखी है दोगली औरतें, सबके सामने पाकीज़गी का चोला पहनकर चलने वाली अकेलाई मुयसर आते ही उतार कर बाहों में आ जाती हैं और मांगती क्या है? सिर्फ पैसा। जानता हूँ तुम भी इन्हीं में से हो। सो कम ऑन बेबी, जहरखुन लहजे में कहते वो तकवा को देखने लगा जिसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। या अल्लाह, इस शैतान सिफ्त इंसान को हिदायत दे, कहते हुए उसने खींचकर साइम को समझने का मौका दिए बगैर उसे थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज़ पर साइम शौक में हुआ। ये लो, मैं इनमें से हूँ जो तुम जैसों पर थूकती हैं, कहते हुए उसने साइम के चेहरे पर थूक दिया। साइम उस चूंटी नुमा लड़की की हरकत पर शशदर खड़ा रह गया और तकवा गुस्से और हकारत से उसे घूर रही थी। तुम्हारी ये हिम्मत, साइम ने कहते अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ किया और झटके से तकवा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा के वो कर्रा उठी। तुम मुझ पर थूकोगी? मुझ पर? साइम ज़ैदी पर? वो राते हुए उसने खींच कर उसे थप्पड़ मारा कि वह औंधे मुंह नीचे कालीन पर जा गिरी। अल्लाह, एक आह सी दिल से निकली। मैं तुम्हें इज्जत से ऑफर कर रहा हूँ और तुम सर पर चढ़ रही हो। कितने चाहिए बोलो, मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। चाहिए करोड़ों में, पर एक रात, सिर्फ एक रात, और वो तुम्हें हाँ करनी ही पड़ेगी, समझी? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा चेहरा ऊंचा करते गुर्रा रहा था। बाहर हॉल में आती गुर्राने की आवाज़ पर सब चौंके और ऊपर की जानिब देखा जहाँ दाएं बाएं रोम से और बीच सीढ़ियाँ। ये किसकी आवाज़ है वजी? मिसेस वहाश ने डरते हुए साइम को वहाँ देखा जो कहीं नहीं था, और फिर आयशा भी। उसकी रूह जैसे परवास करने लगी कि उन्होंने सख्ती से मिस्टर वहाज को पकड़ा। हैदर जो साहिल से तकवा का पूछ रहा था आवाज़ पर चौंकता खड़ा हुआ। साथ हामिद साहब और सायरा बेगम ने भी देखा और साइम ज़ैदी की गैर मौजूदगी देखते ऊपर की जानिब दौड़ लगाई हैदर ने। आयशा और महकार भी हैरान सी बाहर रूम से निकली। तकवा कहाँ है? हैदर ने उन्हें रूम से निकलते देखकर पूछा। हमें क्या मालूम, क्या हुआ है? दोनों एक जुबान बोली तो हैदर उन्हें कुछ भी बताए रूम्स देखने लगा। तकवा, वो घबराया सा पुकारने लगा कि एक रूम में दाखिल होते अंदर का मंजर देखकर वो दरवाजे पर ही साकित रह गया। हैदर, तकवा ने साइम को देखकर पुकारा तो वो जैसे होश की दुनिया में लौटा। पीछे आयशा और महकार भी हैरान परेशान दाखिल हुई और साइम को नीचे पड़ी तकवा के करीब देखकर अंगश्त बदनदार रह गईं। यू बास्टर्ड! हैदर घुर्राता साइम की तरफ लपका और उसे गले से पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तकवा, महकार और आयशा बदहवासी दूर हुई। साइम, जो उसके अचानक मुदाखलत पर बदमज़ा हुआ था, उसके अचानक हमले पर संभल भी ना सका कि हैदर इस हर दर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, घटिया आदमी? वो पागल हो रहा था और धाड़ते उसे लात मारते पीछे फेंका कि साइम लहूलुहान सोफे पर गिरा। हैदर, क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा। महकार होश में आती उसकी जानिब लपकी कि उसके पहुंचने से पहले साइम ने दोनों हाथ सोफे की पुष्ट पर टिकाकर लात हैदर के गले पर मारी, जो अचानक इस अफ्ताद पर संभल भी ना सका और लड़खड़ाकर पीछे टेबल से टकरा कर गिरा। हैदर! महकार, आयशा की चीखें बुलंद हुई उसे कांच पर गिरा देखकर।
तुझे कौन सी तकलीफ हो रही है? दोनों को हीरोगिरी दिखा रहे हैं साले। नाक से बहते खून को आस्तीन से साफ करते धाड़ा और उसकी जानिब लपका के पीछे से फहाद साहब ने उसका कॉलर से खींचा। बस करो साइम, निकलो यहाँ से। उसे खींचकर दरवाजे की जानिब धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। हामिद साहब घबराए हारून के साथ हैदर को टूटी शीशे की टेबल से उठाने लगे। माहौल ऐसा हो गया था कि तकवा को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। वो मजबूत एसाब की मालिक ज़ारों के ज़ार रो रही थी। माफ़ कर दो हामिद। वहाद साहब ने गैज़ो गज़ब में खड़े हामिद साहब की जानिब हाथ जोड़े। दफ़ा करो उसे वजी, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। निकालो इस वहशी को मेरे घर से। वो तकवा को घूरते साइम को देखकर बोले और तकवा को देखा जो सारी सूरत हाल से खौफजदा थी। अंकल, सारी गलती तो तकवा की है। मैंने मना किया था इसे साइम से बात करने से, फिर भी ये ना मानी। अब भुगते इंजाम। कुछ देर बाद साइम और वहाद साहब मिसिस हानिया के जाते कमरे में मौजूद शाह फैमिली के बीच आयशा की आवाज़ गूंजी। नीचे अभी भी पार्टी अपने अरूज पर थी और जैदी फैमिली बैक साइड से साइम को लेकर चली गई थी। तकवा ने चौंक कर आयशा को देखा। सायरा बेगम और बाकी सब ने भी तकवा की जानिब देखा। आयशा, मैंने कब इससे बात की? वो खुद पीछे आ गया, मैं तो उसे ठीक से जानती नहीं। तकवा ने आंसू साफ करते सबकी नज़रें खुद पर देखकर कपकपाती आवाज़ में कहा, मैंने पहले से कहा था जवान जहान लड़की को मत लाओ। देख लिया नतीजा। हारून को देखते महकार तकवा पर नफरत भरी नज़र डालकर कह उठी और वो सिसक उठी। मेरा यकीन माने भाभी, मैं उसे नहीं जानती। वो सर झुकाए कहने लगी, नहीं जानती तभी जानबूझकर खुद पर जूस गिराया, जब देखते हुए भी कि वो लड़का सामने तुम्हें ही देख रहा है। रूम में जाने लगी। बीबी, इसका क्या मतलब हुआ? वो तो इशारा ही समझेगा ना। सायरा बेगम ने अपने भतीजे की पीठ देखते जहर खुन लहजे में गोया हुई। अब की बार सबकी हैरत भरी नजरें उसकी जानिब उठी और तकवा का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अल्लाह पूछे तुम्हें साईं मेरे पाक दामन को दागदार बनाते हुए। वो दिल में सिसकती हुई लबों पर हाथ जमाए अपनी चीखें दबाने की कोशिश करती कांप रही थी एक कोने में खड़ी। हारून खुद इस सूरत हाल से सर पकड़ कर बैठा था। कॉल करो इसके भाई को और बुलाओ कि आकर ले जाए अपनी बहन को। हमसे नहीं संभाली जा रही भाई। महकार के लफ्जों से तकवा को लगा कि उसे किसी ने खींचकर बीच बाजार में बगैर दुपट्टे के खड़ा कर दिया हो। बस करो महकार, देख नहीं रही थी वो लड़का कितना घटिया था? मौका देखते तकवा के पीछे आ गया। हैदर जो कब से सुन रहा था गुस्से से धाड़ा। क्या कहा उसने तुमसे तकवा? बात को खत्म होते देखकर आयशा बल खाकर फिर से तकवा को बीच में घसीट लाई। इस बार हैदर और हामिद साहब ने भी तकवा के चेहरे को देखा जो पीला पड़ गया था। क्या बताती कि वो उससे एक रात की कीमत पूछ रहा था, उसे अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहता था एक रात के लिए। तकवा हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। हारून भाई, प्लीज़ मेरे भाई को कॉल करें। कुछ देर बाद तकवा की आवाज़ खामोश फिजा में गूंजी जो आयशा ने महकार की जानिब देखा। वो हारून को ही देख रही थी जो शशोपंज की कैफियत में खड़ा था। आप इसे घर ले जाएं हारून। हामिद साहब की आवाज़ गूंजी तो उसने बेहतर समझते सर हिलाया। तुम्हारी गर्दन की रग सूज चुकी है, हैदर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। महकार ने परेशानी से कहा तो तकवा ने भी नजरें उठाईं। हैदर ने भी उसकी तरफ देखा। वो लब भेजकर सर झुका गई। रुको। रोते हुए जाती तकवा को देखते हैदर की आंखों में कुर्बो अजियत देखकर हामिद साहब बोले तो हारून ने मुड़कर उन्हें देखा। साथ तकवा को भी कदम रोकने पड़े, हालांकि वो एक मिनट भी यहाँ मजीद नहीं ठहरना चाहती थी। जहाँ एक औरत के बेकसूर होने के बावजूद भी उसके हक में हर्फ ना कहे, कोई उसका यकीन ना करे, तो वहाँ रहना मतलब अपनी और तौहीन करना है। वो समझ जाए जहाँ वो खड़ी है वहाँ इंसान नहीं बेहिस वजूद रहते हैं। उनसे कोई भी तवक्का करना बेवकूफ़ी होगी। मुझे माफ़ कर दो तकवा बेटा कि तुम्हें अपने घर में इतनी रुसवाई सहनी पड़ी। हामिद साहब चलकर उसके सामने आए और उसके सर पर हाथ रखकर शर्मिंदा लहजे में गोया हुए कि वहाँ मौजूद सवाए हैदर हारून के सब सकते में आ गए। हैदर ने मुस्कुराते सर झुकाया कि उसकी मोहब्बत रुसवा होकर जाने से बच गई। अलबत्ता आयशा और महकार बिलबला उठी हामिद साहब को देखकर जो अब तकवा के सामने हाथ जोड़ रहे थे। हामिद, क्या कर रहे हो? सायरा बेगम अपने भाई के हाथ इस 2 टके की लड़की के सामने जोड़े देखकर गुस्से का इजहार कर गईं। कुछ नहीं आपा, ये बच्ची मेरे घर आई थी। हमारा फर्ज था कि हम इनकी निगरानी करते। ऐसे शैतान सिर्फ लोगों से महफूज रखते अपने आंगन में। पर हम क्या कर रहे हैं? उसे आंसू बहाते सिसकते देखकर उल्टा इस बेकसूर बच्ची पर उंगलियां उठा रहे हैं। इसके पाक मजबूत किरदार पर उंगली उठा रहे हैं जिसकी किरदार की गवाही इसका नाम दे रहा है। अगर आज मैं बगैर माफ़ी मांगे इसे जाने देता तो शायद सारी ज़िंदगी अपना मुंह देख नहीं पाऊंगा आईने में। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अगर माफ़ी के लायक हूँ तो कर दो अपने बूढ़े बाप को। सबको हैरान शशदर छोड़कर वो तकवा के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे कि तकवा खुद रोना भूलकर आंखें फैलाए आखिरी लम्हे में अपने रब का करिश्मा देख रही थी। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त देता हूँ, जिसके लिए चाहूँ ज़िल्लत देता हूँ। अंकल, ये क्या कर रहे हैं? मुझे गुनाहगार तो मत बनाएं। बाप होकर बेटी के सामने हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लग रहे, प्लीज़। वो तड़प कर हामिद साहब के हाथ अपने हाथों में लेकर बोली तो हारून हैदर दोनों मुस्कुराए एक बार फिर।
अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुम जैसी औलाद तो रहमत होती है अपने माँ बाप के लिए। हामिद साहब ने शफकत से मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा तो तकवा भी मुस्कुरा दी और उसे मुस्कुराते देखकर कुछ देर पहले जो आग हैदर के दिल में जल रही थी उस पर जैसे बर्फ पड़ गई। अब उसे ये मानने में कोई आर नहीं थी कि उसके मुस्कुराने से ही उसकी दुनिया आबाद है। वो जैसे तपती धूप से छाँव में आकर सुकून की सांस लेकर लेट गया तो सायरा बेगम ने गुस्से से तकवा को देखा। अल्लाह हाफिज अंकल, बहुत शुक्रिया। आंसू भरी आंखों से देखती वो वहां से निकली। आयशा ने ये ड्रामा देखकर कहर बरसाती नजरों से मेहकार भाभी को देखा तो वो भी उसे देखने लगी। देख लो, इतना बड़ा हादसा हुआ पर तुम्हारे बाप भाई की आंखों पर पट्टी बन गई है इस काली की, और तुम मुझे अपने भाई से शादी करवाने की प्लानिंग सोच रही हो। आयशा एक जताती नजर डालती झटके से मुंह फेर कर वहां से निकली, पर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तुम चल रही हो? सायरा ने बेगम मेहकार से पूछा। नहीं, आप साहिल को ले जाएं, मैं कल आ जाऊंगी। उसने नफ़ी में सर हिलाते हैदर को मुस्कुराते देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। वो सर हिलाकर अपने भाई से मिली। कुछ भी था, वो उस लड़की की वजह से कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। हामिद साहब हैदर की गर्दन और पुश्त को देखते बोले। नहीं डैड, इसकी ज़रूरत नहीं। आप नीचे गैस के पास जाएं। पता नहीं कौन सी खिचड़ी पका डाली होगी, अकेले खा जाएं। वो शरारत से कहता दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अच्छा बेटा, तुम भाई का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मेहकार को कहते वो वापस गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आंखें सफेद कर वो लेटे हैदर को देखने लगी। मैं भला तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? वो मुस्कुराकर आंखें मूंद गया। क्या चल रहा है आपके और तकवा के बीच हैदर? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में तलखी समा गई। हैदर ने पट से आंखें खोलकर उसे देखा। ये कैसे बातें कर रही हैं मेहकार? मुझे ये लफ्ज़ सख्त नापसंद आए हैं कि तुम्हें तकवा को ऐसा समझो। हैदर नागवारी से बोला तो मेहकार लब दबा कर रह गई। मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ, पर मेरी पसंद सिर्फ मुझ तक महदूद है। तकवा को कुछ इल्म नहीं, वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। और आज जो उस लोफर लड़के ने किया है, मेरा दिल कर रहा था उसकी सांसें छीन लूँ। अगर बीच में उसका बाप ना आता तो मैं ऐसा करने से भी गुरेज ना करता। वो जब से गोया हुआ और मेहकार उसके लफ्ज़ों में शिद्दत देखकर शशदर रह गई। बात इतनी आगे निकल गई और उसे खबर भी ना पड़ी। तुम जानते हो वो गाँव की है? सदमे से चूर उसकी फंसी फंसी आवाज़ गूंजी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे गांव के बाबत, जैसे वो किसी दूसरे स्यारे की मखलूक हो। हैदर कहकहा लगा उठा और मेहकार आग लपेट में जल भुन गई। क्या वो दावे से कहे हैदर के मुतालिक हारून से बातें उसके मुंह पर पड़ने वाली थी? क्या वो इस सांवली घरेलू लड़की को अपनी भाभी बनाएगी? बेसाख्ता ही झुरझुरी ली। आपने कभी गौर किया है हैदर आयशा पर? कुछ देर मुकम्मल सकूत के बाद मेहकार ने जरा सी हिम्मत की। हैदर ने कोफ से आंखें खोली। क्यों भला? मैं क्यों गौर करने लगा उस पर? और वैसे यार, उसे बाज रखो, इतने मैसेज करके इरिटेट करती है। वो नापसंदीदगी से बोलकर मोबाइल में देखने लगा और मेहकार का दिल किसी ने जैसे नोच लिया। तो क्या वो सांवली गांव वाली लड़की से हारेगी? हरगिज नहीं। गुस्से से वो बोली। क्या हुआ भाई? क्या हरगिज नहीं? हैदर ने हैरत से उसकी बड़बड़ाहट देखी। कुछ नहीं। मेहकार गड़बड़ाकर जल्दी से उठी। वो नवाफिल शुक्राना अदा करती बेड पर लेटी। कैसे उसके रब ने जाते जाते उसे कांटों से निकालकर मखमल पर खड़ा किया था। जैसे सोचती वो शुक्राना आंसू बहा रही थी। वो दानियाल को कॉल करना चाहती थी, पर हारून ने हाथ जोड़ दिए कि वो अपने दोस्त के सामने उसे बेइज्जत होने से बचा ले। वो खुद ही कुछ दिन बाद उसे किसी बहाने बुला लेगा और वो ना चाहते हुए भी खामोश रह गई। कितने चाहिए? बोलो, मुँह मांगी कीमत दे रहा हूँ। चाहिए करोड़ों में, पर हो एक रात, सिर्फ एक रात, और वो तुम्हें हाँ करनी ही पड़ेगी, समझी? लफ्ज़ थे या कांटे उसके जिस्म को लहूलुहान कर गए। वो बेसाख्ता उठ बैठी और अपनी सूजी गाल पर हाथ रखने लगी जहाँ उसे एहसान सिर्फ इंसान की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। बाबा कहते थे जो इंसान गलत करे तो हमें उसे दूसरे पल माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुश होता है। पर मैं कैसे माफ़ करूँ या अल्लाह उस इंसान को जिसने मुझे ज़िल्लत की दलदल में फेंकने से ज़रा भी नहीं झिझका, मेरे जिस्म की कीमत पूछने लगा था। वो सिसकती रो पड़ी। मैं नहीं माफ़ कर पा रही या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें। उस इंसान को मैं नहीं माफ़ कर सकती। उसने कहते हुए अपने गाल साफ किए। और आयशा, तुमने भी मुझे सबकी नज़रों में गिराने में कोई कसर ना छोड़ी, पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ही गलती हो गई है। इंसान को हमेशा उस इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जो इंसान दोस्ती के लायक हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोस्ती के लायक नहीं, तुम हो, पर शायद मैं नहीं। शायद मैं इस दोस्ती के लायक नहीं जिस दोस्ती में दोस्त पर बहतान लगाया जाए, और मैं ये दोस्ती नहीं चाहूँगी। मज़ीद अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए, तुम्हें नेकी की राह पर चलने और अच्छे बुरे इंसान को पहचानने की तौफीक अता फरमाए मेरी जान। और सिसक उठी। कितनी अटैच हो गई थी उससे। मैं तुमसे एक बार ज़रूर बात करूँगी कि कहाँ मैं तुम्हारी रुकावट बनी कि तुम दोस्ती से दुश्मनी पर उतर आई हो। तकिए में मुंह देकर वो खुद से बोल रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने झटके से सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। भला इस वक्त कौन हो सकता है? रात के 1 बजे का टाइम देखकर वो बड़बड़ाई। आपी। छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा पीटता साहिल उसे पुकारने लगा। तकवा दुपट्टा ओढ़कर जल्दी से उठी और मुंह साफ करके दरवाज़ा खोला।
माफ़ी चाहूँगा तकवा गुड़िया, पर साहिल जिद कर रहा था तुम्हारे पास सोने के लिए। शर्मिंदा सा हारून सर झुकाकर साहिल को देखता तकवा से बोला, प्लीज़ आपी, मुझे मम्मा के बगैर नींद नहीं आ रही। साहिल मासूम सूरत बनाकर अपना छोटा सा तकिया सीने से लगाए नाइट ड्रेस में बोला, अरे इसमें माफ़ी की क्या बात है, मुझे खुशी होगी कि ये छोटा भालू मेरे पास सोएगा, आ जाओ। वो मुस्कुरा कर कहती साहिल को अंदर आने की जगह देने लगी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हारून उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देता वहां से चला गया तो तकवा ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया। ओह वाह, आज मैं आप ही के साथ सोऊंगा। आप मुझे कहानी सुनाइएगा प्लीज़। साहिल साथ तकिया रखकर लेट कर तकवा को देखता बोला, और तकवा को लगा अल्लाह पाक ने उसे इस डिप्रेशन से निकालने के लिए इस मासूम फूल को भेज दिया उसके पास। ज़रूर। वो मुस्कुराती पास लेटी और फिर उसे प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाने लगी कि साहिल की आंखें नींद से आखिरकार बोझल हो गईं, पर फिर भी वो हूँ हूँ कर रहा था। आपी, आपको मेरे मामू कैसे लगते हैं? अचानक दिमाग के ख्याल देने पर उसने पट से आंखें खोली और पूछा। तकवा गड़बड़ा गई। ये कैसा सवाल है साहिल? उसे पसंद नहीं आया उसका यूं पूछना, पर वो तो बच्चा था, शायद ऐसे ही अपने मामू से मोहब्बत के लिहाज से उसकी राय जानना चाहता था। प्लीज़ आपी, बता देना, फिर मैं मुतमईन हो जाऊं फ्यूचर से। उसका हाथ पकड़कर वो मिन्नत करने लगा। तकवा उलझ गई। फ्यूचर? मुतमईन? वो बच्चा कौन सी सोचें रखकर बैठा था? आप दूसरों से पूछ लें, मुझे नहीं मालूम। तकवा झिझक गई, गड़बड़ महसूस करते। सबसे पूछा है, अब आपकी बारी। ये साहिल ने सिर्फ उसे मुतमईन करने के लिए पूछा था। ओह, तकवा ने सुख का सांस लिया। अच्छे हैं। आज साइम से बरवक्त बचाने पर वो उसे सच में अच्छा लगा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी नज़रों की हौसला अफजाई करती। वो इस लिहाज से उसे नापसंद करती थी, वो जानती थी, पर आज के वाक़ये पर वो बहुत मशकूर थी। सच? साहिल खुशी से चहका। मुझ? तकवा मुस्कुराई और उसके सिल्की बाल संवार कर माथे पर बोसा दिया। थैंक यू आपी, अब मैं सो जाता हूँ। वो महकता चहकता आंखें मौन गया। कुछ देर तकवा छत में लगे फ़ैन को देखती रही, फिर आहिस्ता से अपनी भूरी आंखों पर पलकें गिरा ली। वो तकिए में मुंह देकर सिसक रही थी। दिल कर रहा था अभी जाए और चीख चीख कर हैदर के सामने कहे कि वो उससे प्यार करती है, तो उसे क्यों उसकी मोहब्बत नहीं दिख रही? क्यों वो तकवा के पीछे पागल हो रहा था? क्या था उसमें? कुछ भी नहीं। एक आम सी सांवली लड़की जो फैशन लव से दूर दूर तक नावाकिफ थी। गायें भैंसों में पलने वाली वो लड़की उसे टक्कर लगा रही थी। दोस्त में से नागिन बन गई थी उसके लिए। अल्लाह करे तकवा तुम कहीं मर जाओ, मेरी खुशियों की दुश्मन। ना तुम होती, ना ही हैदर मुझे इग्नोर करता। वो रोती हुई बड़बड़ाई और उठकर टेबल से मोबाइल उठाकर उनमें लिए गई खिड़की से हैदर की तस्वीरें देखने लगी जो वो रोज़ लेती थी सुबह। तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिख रही हैदर? तस्वीर पर लब रखती वो सिसकी। मैं तुम्हें ऐसे ही किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो हैदर, सिर्फ मेरे। वो पागलों की तरह मोबाइल उसकी तस्वीर को जूम करके बातें कर रही थी। तुम्हारी दुल्हन मैं ही बनूंगी, मैं बनूंगी आयशा हैदर शाह। उसकी तस्वीर को दिल से लगाते हुए अज़म से बोली, अगर तुमने तसव्वुर में भी हैदर के बारे में सोचा तकवा, तो तुम्हें ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत पर रोगी। वो ख्यालों में ही तकवा से मुखातिब थी। कैसी तबीयत है डार्लिंग? लैला उसके गाल पर उंगलियां फेरती बोली। साइम, जो अपनी बंद आंखों पर भीगी पलकें और भूरी सुर्ख आंखों में गुस्सा और खौफ देखता और एक दिलकश सरापे में खोया हुआ था, आवाज़ पर उसने आंखें खोली तो सामने ही खुद पर झुकी लैला को पाया। उसकी नीली लहू रंग आंखें लैला की काली आंखों से टकराईं, पर उसे उनमें भी वो भूरी आंखें दिख रही थीं। तभी खामोश उसे देख रहा था। लैला का दिल झूम उठा। उसे खुद को तकता पाकर वो उसकी आंखों के नीचे नीले निशान पर उंगलियां फेरती सूजी गाल को देखने लगी। वो उस पर काफ़ी झुकाई थी कि दोनों के बीच फासला ना होने के बराबर रह गया था। भूल जाओ उसे, हम अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं डार्लिंग। उसके लबों पर झुकती वो कहने लगी कि साइम आवाज़ पर होश में आता और उसे झटके से पीछे फेंका कि लैला जो बेड के किनारे पर टिकी थी आग के साथ नीचे कालीन पर गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? धाड़ता वो गैज़ो गज़ब की हालत में उठ बैठा और शौक में नीचे पड़ी लैला को घूरा। ये कैसे बिहेव कर रहे हो तुम साइम? लैला से नाश्ते की ट्रॉली अंदर लाती मुलाजमा के साथ मिसिस वहाज लैला को नीचे से उठाती गुस्से में देखते हुए साइम से बोली। हानिया जानती थी कि साइम को कोई दिलचस्पी नहीं लैला में, ये बस उसकी दोस्त की बेटी होने पर उसने उसे बेइज्जत करने के लिए लैला की जानिब पेशकदमी की थी, और वो तो जैसे इंतजार में बैठी थी। किसी दरख्त के पक्के फल की तरह उसकी झोली में गिरी। अब तो उसकी दोस्त राबेल, जो एक सोशल वर्कर थी, अपनी बेटी के लिए साइम के ख्वाब देखने लगी थी, और लैला ने भी अपने हमसफ़र के रूप में उसे आंखों में सजा लिया था। किस खुशी में तुम दोनों अंदर आई हो? वो पाँव नीचे रखते नागवारी से दोनों पर नज़र डालकर पूछने लगा। मैं नाश्ता देने आई हूँ और डॉक्टर भी आने वाला है तुम्हारे चेकअप के लिए। मिसिस वहाज मुलाजमा को जाने का इशारा करती नाश्ता टेबल पर रखती बोली। क्यों चेकअप? वो आईने में अपने खूबसूरत चेहरे पर नीले सुर्ख निशानों का जायजा लेते ब्रुज उचकाकर बोला। मुझे कौन सी बीमारी हो गई है जो डॉक्टर आएगा? उसने तमस्कुर से पलट कर पूछा। अल्लाह ना करे प्रिंस, कैसी बातें कर रहे हो? मिसिस वहाज ने अपने दिल पर हाथ रखा।
तो वो हंस पड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। रियली? उसने खामोश खड़ी लैला पर नजर डालते कहा। तुम्हारे चेहरे पर जो चोटें आई हैं उनके लिए तुम्हारे डैड ने कहा है जैकब, अपने शौहर के ऑर्डर अपने पास रखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, अब निकलो। वो गुस्ताख लहजे में कहता उन्हें बाहर निकलने का इशारा करने लगा। मिसिज वहाज का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। लैला तुमसे मिलने आई है, उन्होंने दबे हुए लहजे में बात बदली। मैं देख चुका, साइम ड्रेस निकालते हुए बोला कि अब जाओ, क्यों सर पर सवार हो। वो सर हिलाती बाहर निकली। अब अगर वो चेकअप से मना कर गया था तो ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो करता वही था जो सोचता था, बाकी सब जाएं भाड़ में। तुम क्यों आई हो? लैला को कमर से पकड़कर अपने करीब करते पूछा। तुम्हें देखने, आंटी ने कहा था तुम्हें चोटें आई हैं। तुम छोड़ क्यों नहीं देते साइम उस झूठी लड़की का पीछा? वो मिडिल क्लास, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड की है? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? उसके शानों के गिर्द बाजू फैलाकर वो आयशा का सोचते तलक हुई। आई नो वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं, बट नाउ यू डोंट वरी बेबी, मैं उसकी जगह असल शर्त वाली पर वापस आ रहा हूँ। मैंने सोच लिया है कि जाली मेरे पास बहुत हैं, अब असली वाली को टेस्ट करना चाहता हूँ। वो तकवा को सोचकर कह रहा था। ये ठीक रहेगा और इससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीत कर लौटना शर्त हमेशा की तरह। लैला तकवा मामूली शक्लो सूरत वाली लड़की का सोचती हुई मुस्कुराई। ये तो शुक्र था उस आयशा से जान छूटी उसकी। कहीं चलें? अपनी गर्दन पर झुके साइम के घने बालों में उंगलियां फेरती वो बोली कि उसने मुदाखलत पर बदमजा होते उसे पीछे झटका दिया। मुझे यूं नहीं जाना है, बहुत खास इंसान से जवाब वसूलने। वो कहकर ड्रेस लेकर बाथरूम में बंद हो गया। मैं भी चल रही हूँ, लैला पीछे से बोली और तब तक बैठी रही जब तक वो फ्रेश होकर बाहर ना निकला। वो उसे देखकर उठी तो साइम ने उसे वहीं बैठने का इशारा दिया और रेडी होकर खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। तुम्हारे चेहरे के निशान, मुझे लगता है आज तुम्हें नहीं चलना चाहिए। पर्स उठाती उसे कलाई में घड़ी बांधते देखकर बोली। मैं भी वही इलाज करवाने जा रहा हूँ। मायनी खेदी से मुस्कुराते उसने अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते पीछे की जानिब किए। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, जिसे झांकता उसका चौड़ा सीना लैला को बार बार अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था, पर वो बेहिस बना अपने काम में मसरूफ था। निकलो, शराब के 2 घूंट लेकर उसे चलने का इशारा करते पीछे खुद भी बाहर आया और लाउंज से गुजरते हमेशा की तरह उसकी सीटी की धुन नाश्ते की टेबल पर मौजूद वहाज साहब को बहुत कुछ याद दिला गई कि उनके हाथ हमेशा की तरह साकित रह गए। सुबह उठकर नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद वो किचन में आई। नाश्ता तो वो रोज़ ही बनाती थी, पर आज मेहकार भाभी की गैर मौजूदगी में कुछ जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई थीं, जैसे कि साहिल को स्कूल के लिए रेडी करना, हारून भाई और उसके लिए टिफ़िन बनाना और फिर रोज़ की तरह सायरा बेगम को ड्रेस प्रेस करके देना। पहले जाकर आंटी का ड्रेस प्रेस करके आती हूँ, वरना लेट होने पर नाराज़ होंगी। वो सोचती वापस किचन से बाहर निकली, क्योंकि ये उसकी आदत थी कि जितना हो सके वो किसी को नाराज़ होने का मौका नहीं देती थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और अलमारी से पहले ही प्रेस के लिए रखे सायरा बेगम के सूट को उठाकर जल्दी से प्रेस करने लगी। कुछ देर में ही वो फारिग हुई वहाँ से और जल्दी से ड्रेस हैंग करती, जैसे दबे पाँव आई वैसे ही चली गई, बगैर सायरा बेगम की नींद में खलल डाले। किचन में आई और जल्दी जल्दी हाथ चलाती। पहले आटा गूंथकर वो हारून भाई के लिए पराठा बनाने लगी। पहले हैदर होता था तो वो भी शौक से खाते थे, पर अब वो सिर्फ हारून भाई के लिए बना रही थी। सायरा बेगम और साहिल तो हल्का फुल्का ही नाश्ता करते थे। नाश्ता बनाने से फारिग होकर वो डाइनिंग टेबल पर से जाने लगी और फिर हारून भाई के बंद दरवाजे पर नॉक किया। बस गुड़िया, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप साहिल को उठा दें, उसे जाना है स्कूल। हारून की आवाज़ दरवाजे के उस पार आई तो तकवा मुस्कुराती चली गई। साहिल को तैयार कर दिया। अपने रूम की तरफ जाते हुए तकवा से सायरा बेगम ने पूछा। तकवा चाहकर भी उनके लफ्ज़ों में तल्ख और नापसंदीदगी महसूस किए बिना ना रह सकी। वो तो भूलना चाहती थी, पर शायद कभी भूल नहीं पाएगी अगर यहाँ रही तो। जी आंटी, उसे जगाने ही जा रही हूँ, वो नज़रें झुकाकर बोली। एक तो सुस्ती तुम्हारी रग रग में भरी है, मजाल है जो कोई काम कहे बगैर कर जाओ। जल्दी जाओ, बच्चा लेट हो जाएगा, हफ्ते का पहला दिन है। गुस्से से कहती वो आगे बढ़ गई तो तकवा ने पाँव की रफ्तार बढ़ा दी। साहिल उठो, स्कूल जाना है। वो मुसलसल उसे उठाने की कोशिश में थी, पर साहिल था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था, अलबत्ता किसमिसाकर सो जाता। साहिल, आप ही को तंग मत करो, बच्चे उठो, देखो टाइम बहुत हो गया है, दादी अम्मा नाराज़ होंगी। उसके गाल थपथपाती वो इल्तिजाई अंदाज में गोया हुई कि इस बार शायद साहिल को भी उस पर रहम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसे आंखें खोलते देखकर तकवा मुहब्बत से बोली। वालेकुम अस्सलाम आपी, आप तिलावत कितनी प्यारी आवाज़ में करती हैं। मैं तो तब का जाग गया था और आपको सुन रहा था। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मुझे भी ऐसा पढ़ना सिखाएं ना। साहिल उसके सामने हाथों को थाम कर मुस्कुराते मासूमियत से बोल रहा था और तकवा मुस्कुराती उसकी रोशन आंखों में देख रही थी। ज़रूर शहजादे, आप बाबा को कहें वो आपको किसी करीबी मदरसे में एडमिट करवाएं, फिर आप मुझसे भी प्यारी आवाज़ में तिलावत करेंगे। उसके बाल संवारते वो बोली तो साहिल खुशी से सर हिलाने लगा। आज ही मैं मम्मा पापा से कहूँगा, मुझे भी कुरान पाक पढ़ना है, नमाज भी। वो उसे बेड से उठाती ले जाने लगी कि वो जोशो खरोश से बोला। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हारून भाई बहुत खुश होंगे। वो उसे रूम में लाई और उसे तैयार करने लगी स्कूल के लिए।
आ गया मेरा शेर पुत्र। स्कूल के यूनिफॉर्म में मलबूस साहिल को डाइनिंग टेबल पर आते देखकर हारून मुस्कुराकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। पर तकवा और वो दोनों यकजुबां होकर बोले तो हारून हंस पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। हारून और सायरा बेगम दोनों ने सलाम का जवाब दिया और तकवा मुस्कुराती किचन में चली गई टिफिन रेडी करने। सुनो लड़की, यूनिवर्सिटी जाने से पहले किचन की सफाई करती जाना, वरना महकार को मुश्किल पेश आएगी खाना बनाने में। डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाती सायरा बेगम तकवा से बोली तो वो सर हिला गई और फिर कुछ देर बाद सब काम निपटाकर वो यूनी जाने के लिए तैयार होने लगी बगैर नाश्ता किए। उसने सोच लिया था कैंटीन से कुछ खा लेगी, वक्त इतना बचा नहीं था, वरना वो यहाँ से ही कर लेती। अगर लेट होती तो डॉक्टर अब्दुल वाहिद की क्लास मिस हो जाती, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हिजाब करने के बाद ऊपर ब्लैक चादर ओढ़कर वो पाँव में जोकर्स पहनकर सायरा बेगम को अल्लाह हाफिज कहती बाहर आई। आयशा के साथ जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अल्लाह का नाम लेकर नजरें नीचे किए वो आयतल कुर्सी पढ़कर घर से बाहर निकली और फिर यूनी के गेट के सामने रुकते उसने शुक्राने का सांस खारिज किया। फर्स्ट और सेकंड पीरियड अटेंड करने के बाद पेट में रोते चूहों की शिकायत पर उसने अपने कदम कैंटीन की जानिब उठाए, पर उसके कदम ठटक के रुके जब कैंटीन बॉय से बात करते साइम और उसके ग्रुप को देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई और उसने आसपास नजरें घुमाई तो कुछ फासले पर मौजूद एक टेबल पर आयशा को पाया, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती उसके साथ होती थी, पर आज उसकी बगल वाली सीट खाली थी। आयशा ने उस पर सरसरी नजर डालकर फिर से अपनी गुफ्तगू में मशगूल हो गई, जैसे वो उसे जानती नहीं थी। तकवा के दिल में अचानक से कुछ टूटा। मैं क्यों डर रही हूँ? मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा भाई है, मैं अकेली नहीं हूँ। एक सर्द सांस खारिज करते आगे बढ़ी। यार, मैंने सुना है तुम डॉक्टर बनकर गांव वालों के लिए हॉस्पिटल बनवा रही हो। एक हमारे गांव में भी बनवा देना, कसम से गरीबों की दुआएं मिलेंगी। पास से ही ये लफ्ज़ तकवा के कान में पड़े और साथ कहकोहों का तूफान उठा। तकवा ने लब भेजकर एक नज़र उनमें हंसती आयशा पर डाली। ये सच था, जो दिल के राज जान ले वही पलक झपकते जानलेवा साबित होते हैं, और उसका मकसद जानकर अब उसे मजाक का निशाना बना रही थी, पर उसे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए थी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। कुछ लोगों को देखकर मुझे सोना याद आ रही है। क्या कहती थी? हाँ, मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास 10 मुर्गियाँ हैं, 20 अंडे, 40 गायें, 60 भैंसें, और सबसे बढ़कर मेरे पास मेरा भाई है, जो इन मुर्गियों, भैंस, गाय से बढ़कर है। कैंटीन की सारी फिजा में कहकोहों का शोर था और जो खामोश थे वो भी हंस रहे थे और उस लड़की का जुमला दुरुस्त कह रहे थे कि इतने नहीं इतने बोले थे। तकवा अपने डूबते दिल के साथ कैंटीन पर आई और कांपते हाथों से ऑर्डर देते बैग से पैसे निकाले। वो डर नहीं रही थी, ना ही अपनी हैसियत पर शर्मिंदा थी। वो सिर्फ पास खड़े वजूद की पुरतपिश नजरों से वहशतज़दा थी। जानती थी इस मजाक के बाद सबकी नजरें उस पर हैं, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाली थी, ये तो तय था। गोबर के ओपले बनाकर थोपने वालियां भी डॉक्टर बनने आई हैं। भाई हैरत की बात है। एक की हैरत के इजहार पर दूसरियों ने की करते अपनी नफरत का इजहार किया। साइम खामोश खड़ा तकवा के चेहरे के तासुरात देख रहा था, जो हमेशा की तरह बेतासुर था। उसका ग्रुप तकवा को देखकर वहां से दूर होकर एक टेबल पर बैठ गया। तकवा खामोशी से वहां से जाने लगी कि साइम ने अपने पाँव आगे कर दिया। आह के साथ वो तवाज़ुन बरकरार ना रखते मुंह के बल गिरने वाली थी कि लड़कियों से भरी भरी कैंटीन में साइम ने आगे बढ़कर बर वक्त उसे कमर से जकड़ा। इस सीन को देखते हर तरफ सन्नाटा छाया और आयशा के साथ बाकी लड़कियां भी साइम के हिसार में तकवा को देखकर गशबदंदा हुईं। अलबत्ता एस ग्रुप नॉर्मल हुए बैठे थे और तकवा सांस रोके अपनी कमर पर साइम की बिच्छू जैसी उंगलियों की सख्त पकड़ में मचल कर दूर हुई। वहशी! अगले ही पल वो चिल्लाई और चटाक की आवाज़ पर माहौल में सुकूत फैल गया। साइम सारे स्टूडेंट्स के सामने उसकी जुर्रत और थप्पड़ पर शशदर गाल पर हाथ रखे खड़ा था। अलबत्ता उसकी नीली आंखों में वहशी कहने पर लहू निकल आया। देखा, एक देहातन का कमाल! एक कहे के साथ अचानक ही तूफान उठा। क्या हो रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद की धाड़ पर हर तरफ खामोशी फैल गई। प्रोफेसर साइम जैदी ने मिस तकवा को गिरने से बचाया और मिस तकवा ने उल्टा उसे वहशी कहकर थप्पड़ मारा। एक लड़का जल्दी से खड़ा होकर बताने लगा। प्रोफेसर ने रोती हुई तकवा को देखा और गुस्से में भरे खड़े साइम जैदी को। आयशा बेहिस बनी बैठी थी, जैसे वो किसी और का वाकया देख रही हो। डीन ऑफिस में आओ तुम दोनों, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद गुस्से से कहते चले गए। अब उनके अंजाम पर सब हैरान खड़े थे। साइम लैला भागकर पास आई, पर उसकी आंखों में गैज़ो गज़ब देखकर वहीं रुक गई कुछ फासले पर। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें और तुम्हारे इस आशिक को, और अच्छे से वहशी का मतलब भी समझाऊंगा मैं तुम्हें, साइम कहता वहां से चला गया। और तकवा आंसू साफ करती सरगोशियों पर ध्यान दिए बगैर अपना बैग ओवरऑल नीचे से उठाती डीन के ऑफिस की जानिब कदम उठाए। सर, साइम जैदी चला गया। एक स्टूडेंट वहां खड़ी तकवा पर नजर डालकर प्रोफेसर से बोले तो वह सर हिलाकर रह गए और डीन को देखा। आपने साइम जैदी पर हाथ क्यों उठाया? गुस्से से प्रोफेसर तकवा से पूछने लगे। प्रोफेसर, उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया। और फिर वो कहती सर झुकाकर आंसू बहाने लगी, पर उसके आधे अधूरे लफ्ज उन्हें काफ़ी कुछ समझा गए। साइम जैदी की शोहरत से तो वो पहले ही वाकिफ थे।
हमें अब चीफ जस्टिस साहब की नहीं सुननी, हमें एक्शन लेना ही होगा साइम के खिलाफ। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वाहिद तकवा से कुछ सवालों के बाद उसे जाने की इजाज़त देते प्रिंसिपल से बोले तो वहाँ सब उसकी बात से मुत्तफिक हुए और फिर मसले का हल साइम जैदी को यूनिवर्सिटी से निकालने का ही बचा। उसे काफ़ी बार वार्न किया गया था पर फिर भी उसकी हरकतें वही थीं। बहुत अच्छा बदला लिया है भाई, और कितनों को यूं जलील करके अपने पीछे घुमाने का इरादा है। वैसे मुझे तो सख्त हैरत है, ऐसा क्या कर दिया कि हैदर और साइम दोनों की नज़रें तुमसे हटने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आयशा तकवा का रास्ता रोक कर उससे तल्ख लहजे में हैरत से बोली। तकवा ने अपनी सुर्ख नज़रें उठाईं। मेहरबानी होगी कि इस वक्त मुझसे बात ना करो, तकवा नागवारी से कहती जाने लगी। क्यों, यूनी वालों ने भी तुम्हारा मकरूर चेहरा देख लिया है जिससे तुम्हें धक्के देकर गांव के गन को गांव में फेंक रहे हैं। उसकी कलाई पकड़कर वो तो मस्कुर से बोली। तकवा ने मुड़कर अपनी कलाई को देखा और झटके से छुड़वाया। शहर की रौनक बनने से मैं गांव का गंद ही बेहतर हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। पर एक बात बताऊं तुम्हें, रात को मैं सोच रही थी जरूर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझसे इस तरह बिहेव कर रही हो, और अब मैं सोच रही हूँ कि शुक्र है जो मुझसे गलती हुई। लोगों की तरह मुझे ज्यादा खोजना नहीं पड़ा कि तुम खालिस हो या खोटा सिक्का। और तुम्हें क्या लगता है गांव का मजाक बनाने पर तुम मुझे भी इज्जत कर रही हो? वो हंसी। आयशा ने मुठ्ठियां भेजकर उसे देखा। जो तुम्हारी तरह थी वो जरूर हंसी, पर जरा दूसरी तरफ भी देखा होता तो अपने इस प्लान पर पछतावा होता, क्योंकि वहां पर ज्यादा तादाद गांव वालों और हम पर प्राउड करने वालों की थी। वो कहती एक नजर भी डाले बिना उसके चेहरे पर वहां से चली गई। आयशा जब से उसकी पुष्ट को देखती रह गई।